imposed martial law in Pakistan. Clear? अब हम लोग पहले सवाल पे आते हैं कि टॉपिक लिखते हैं पहले. टॉपिक इज अयूब खान. अयूब खान. मैम इनकी सीटिंग भी आगे जरा कराइएगा. इनको लहदा बिठाना है. इसको अयान को आगे बिठाना है. इसको अयान को इधर सीट मंगवा के दें. इधर आगे आ जाए. बिल्कुल आगे जी. अयूब खान 1958 till 1969. जी बेटा 1958 till 1969 Ayub Khan came into power. There are 4 types of question which can be given on Ayub Khan. Number, अब ये मैं पूरी लेआउट बनवा रहा हूं आपको. Which type of questions can be given? What is the context of the question and how to tackle those questions? The first question, reasons of coming into power. अयूब पे, जुल्फिकार अली भुट्टो पे, जियाउल हक पे, ये 3 क्वेश्चन, ये 3 बंदों पे सेम डायमेंशंस पे एग्जामिनर कैन आस्क यू क्वेश्चंस. इज इट क्लियर? नंबर 1, रीजंस फॉर कमिंग. ये 4 डायमेंशंस होंगी बेटा, तो आपने इतना ऐसे बनाना है कि ये 4 डायमेंशंस आपकी पूरी आ जाए. रीजंस फॉर कमिंग इनटू पावर. नंबर 1 जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पहली कौन सी डायमेंशन है? रीजंस फॉर कमिंग इनटू पावर. सेकंड डायमेंशन, दिस इज domestic policies of Ayub Khan. This is the second dimension. And the third dimension is foreign policy of Ayub Khan. Foreign policy of Ayub Khan. And the fourth dimension is reasons of resignation, reasons of unpopularity and resignation, reasons of resignation or unpopularity. और कोई बंदा रिजाइन कब करता है? जब वो लोगों में अनपॉपुलर होता है ना, तभी वो रिजाइन करता है. लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अनपॉपुलर होने के बाद भी रिजाइन नहीं करते. ऐसे ही है जी. अब बेटा अब दिस पोर्शन इज फेमस फॉर 7 marks question. This portion is famous for 14 marks question. This portion is famous for 14 marks question. And this portion is famous for 7 marks question. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर क्लियर बेटा? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? Yes, sir. जी बेटा. So there are 4 perspective on which examiner can ask you questions. Is it clear everyone? जी online students, is it clear beta? Yes, sir. Now what type of question can be given on reasons of coming into power? Why did Ayub come into power? Why was martial law imposed by him? Why was martial law imposed by Ayub? In which year he imposed martial law? 1958. Now there must be 3 reasons for that. Why was martial law imposed by Ayub Khan? मैंने
ये सारे पॉइंट्स पहले पिछले चैप्टर के अंदर करा चुका हूं. आई एम जस्ट reorganizing the points which you people have covered in the last chapter. आपने ये लास्ट टॉपिक के अंदर कवर किए हैं सारे. अगर आपको याद हो तो थर्सडे की क्लास में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस कराए थे. आप इफ यू स्टिल रिमेंबर कि कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे. नाउ अयूब खान imposed martial law because point number 1 Poor law, yes beta, poor law and order. very good ji. First reason is poor law and order. Due to poor law and order, due to poor law and order, due to poor law and order, after smuggling etc, Sir, the unpopularity of Sikandar Mirza. Ayub came into power या Ayub imposed martial law. इसको इनवाइट किसने किया था कि मार्शल लॉ लगाओ आप? Sir, Sikandar Mirza ने. मैंने आपको हमेशा बताता हूं कि मार्शल लॉ के लिए हमेशा इनविटेशन दिया जाता है. इनविटेशन किसने दिया? सिकंदर मिर्जा इनवाइटेड हिम. सिकंदर मिर्जा invited him after political problems between Feroz Khan Noon and Sikandar Mirza. Feroz Khan Noon and Sikandar Mirza. Beta, what was the problem between Feroz Khan Noon and Sikandar Mirza? The biggest problem was Feroz Khan Noon wanted to reduce the powers of president, and Sikandar Mirza was president. So when Feroz Khan Noon tried to reduce the powers of president, it means he was indirectly reducing the powers of Sikandar Mirza. So Sikandar Mirza did not like this thing, and that is why he invited Ayub Khan to come into power. Not came. Is that clear, everyone? Third point मैंने आपको एक ऑलरेडी पहले भी लिखवाया था. डॉक्ट्रीन ऑफ नेसेसिटी आफ्टर मौलवी तमीजुद्दीन केस. आर्मी या अयूब made a reason on basis of doctrine of necessity on judgment of Supreme Court, on judgment of Supreme Court. If you remember, Supreme Court Justice Munir जो है, he gave the very conflicting decision over the dismissal of, किसके dismissal पे उसने conflicting decision दिया था? मोहम्मद अली बोगरा's decision. तो उस डिसीजन की बेस पे मोहम्मद अली बोगरा को जो डिसमिसल था, दैट वाज द वेरी वेरी मेजर रीजन कि आर्मी के पास एक मौका था कि वी कैन इजीली कंट्रोल द पावर अंडर द डॉक्ट्रिन बिकॉज द कंट्री नीडेड मार्शल लॉ. दैट्स व्हाई वी इम्पोज्ड. सिंपल. इसके अलावा और भी रीजंस बन सकती हैं. लैक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, देयर वाज नो स्ट्रॉन्ग लीडर आफ्टर जिन्ना. ये सारी रीजंस और भी मार्शल लॉ की बन सकती हैं. बेटा,
बन गया, लेकिन दैट वाज नॉट अ स्टेबल और कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें पावर्स की डिवीजन सही स्ट्रांग नहीं थी। क्लियर? इज इट क्लियर? व्हाट आर द अदर रीजंस? बाकी और भी रीजंस बन सकती हैं, आप लिख लें बेशक, मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं उनके। P4 लैक ऑफ प्रॉपर लॉस, P5 नो स्ट्रॉन्ग लीडर आफ्टर जिना। जितने भी लीडर आए वो सारे क्या थे? ऑल द लीडर्स आफ्टर जिना वर Sir, power hungry. puppets. They were power hungry. Basically, they needed power. They wanted power. They did not want to share power with anyone else. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? सर यस बेटा। हम इसमें 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं कि उसके आप अकॉर्डिंग लिख एक साल सकते हैं बाद कि 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ बिग फेलियर because there was not a clear division between the prime minister and the president power, and president had upper hand by giving some extra powers in it. Clear? यस सर। उसके अलावा वो भी आप लिख सकते हैं, प्रोडा जैसे लॉज जो थे, these laws were misused, कि देयर वाज करप्शन इन पाकिस्तान। जी अयूब खान ने ये भी नारा लगाया था ना कि आई एम हियर टू इरेडिकेट द करप्शन फ्रॉम पाकिस्तान। इज इट क्लियर? जी मुस्तफा, इज इट क्लियर? मैंने क्या बोला है? जल्दी 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 जल्दी। जी बेटा, इज इट क्लियर एवरीवन? जी बेटा, Yes, sir. आगे चलते हैं हम लोग, और भी बताना जो जो देखे, ठीक? हाँ, जो जो मोबाइल इस्तेमाल करें मुझे बताते ही जाना। आपसे मोबाइल क्रैकडाउन स्टार्ट होने लगा। ओके जी, नेक्स्ट बेटा। नेक्स्ट वन इज, आफ्टर this one we have another reason. Beta, another reason is Ayub Khan was strong enough, and Ayub Khan के पास जो पावर्स थी उसकी डोमेस्टिक पॉलिसीज की वजह से थी। है ही इंट्रोड्यूस सो मेनी डोमेस्टिक पॉलिसीज, और इसको पता है इसने कितने साल पाकिस्तान में रूल किया? 11 years. After passing of 10 years, he celebrated his era. Yeah, his Sir, domestic was called decade of development or decade of progress. Yes, yes. Domestic policies. We have so many categories in the domestic policies of Ayub Khan. Number one, A. नंबर 1 ए पे है कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसी। Sir, 1962 का constitution. यस बेटा, in the constitutional policies we have one major policy. This is called 1962 constitution. Clear? This is one of the major policy. Is it clear beta? Then we have two laws to remove the corruption, PODO and EBDO. PODO and EBDO, just write the names first. मैं इनकी explanation अभी करूंगा, ये पूरा नहीं हो रहा अभी, ये just I'm giving you the structure. Next beta, then we have political policies. I'm just making the difference in it. B is political policies. To strengthen his rule, he introduced a new type of political system in Pakistan that was called basic democracy system. Basic democracies. This is called BD system. इसको क्या बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में? That BD system was introduced in 1959. ये सिर्फ अयूब खान ने, he wanted to make his power more strong, more authoritative. That is what he ruled the country. Is it clear? जी बेटा,
डन हो गया? फातिमा जिन्ना ने इसी सिस्टम के खिलाफ मतलब कैंपेन किया था ना। बिल्कुल बिल्कुल इसी के खिलाफ, क्योंकि ये बीडी सारे जितने भी बेसिक डेमोक्रेट्स होते थे, बेसिक डेमोक्रेसीज में जितने भी पॉलिटिशियंस, ये जो बेसिक डेमोक्रेट्स बनते थे, दे वर करप्ट। वैसे भी करप्ट थे, लेकिन ये और ज्यादा करप्ट हो गए बिकॉज दे गॉट मोर फंडिंग्स। Yes, that's what they're doing. Number C, economic policies. If we talk about economic policies, beta, in the economic policies, we have two subheadings. Number one, in the economic, we have agricultural policies, and number two, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। अगर कोई आपसे पूछे कि अयूब खान की सबसे मेजर पॉलिसीज कौन सी थी, तो आप कौन सी बताएंगे? नो, एग्रीकल्चरल। अयूब खान, in the time period of Ayub Khan, agricultural GDP of Pakistan increased massively, and Pakistan was among the top 10 producers of every single crop. GDP increased from 2.5% to 6% in agriculture. Yes, 3 times more than even in Asia. Pakistan had the highest agricultural GDP, and overall in the world we were in top 10 of agricultural progression. Yes. So that is why his agricultural policies were always called green revolution. Agricultural policies को हम क्या कहते हैं जी? Agricultural policies are called green revolution. जी बेटा. Next, part D, social policies. In the social policies, Ayub Khan introduced many new steps. Social. What were the policies related to society? सोसाइटी में अच्छे काम क्या किया अयूब खान ने? सोशल वर्क्स क्या क्या थे? एजुकेशन, Health Yes. and medical facilities. educational policies, then very good health policies. लेकिन इसकी सबसे अच्छी सोशल पॉलिसी दैट वाज फैमिली लॉज, and apart from that he had few failed policies like population control, these steps और भी हो सकती हैं, लेकिन बस 4 बहुत हैं. These are sufficient, these are more than sufficient. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, is it clear बेटा? And last is change of capital. Part E is change of capital. Change of capital हम कहते हैं administrative policies. Beta, what was the important thing he did for the country due to administrative policies? That was change of कैपिटल. किस जगह से किस जगह पे चेंज ऑफ कैपिटल किया? लास्ट कराची टू इस्लामाबाद. इस्लामाबाद. जुमे को किधर थे आप? किधर थे? अच्छा, हाँ, आप किधर थे? अच्छा, सही हो गया, कुछ नहीं आए हुए थे. आपका इतला आई थी आपकी वजह से. चले जी, नेक्स्ट बेटा आया था बहुत बुरा, आपका बहुत बुरा फेल हो. ओके बेटा, नाउ वी हैव जी बेटा. यस जाइना,
सर वो सोशल पॉलिसीज में उन्होंने रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजीज के लिए भी स्टेप्स लिख लिए थे सकते ना? हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा था 5-6 पॉलिसीज है, आप 3 से 4 भी कर लें, दीज आर सफिशिएंट। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। देखो जब 14 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन आता है ना, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 5-5 पॉलिसी सारों की लिखें, आप एक एक भी लिखेंगे तो दैट वुड बी सफिशिएंट। क्लियर? यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, ठीक 10 मिनट के बाद जाओ। ओके बेटा, नाउ वी हैव अनदर foreign policy. Beta, in the foreign policy, I'm just writing the successes of his foreign policy and failure in one words. मतलब मैं incidents के नेम लिख रहा हूं सिर्फ। Clear? सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में he was the one who signed a trade pact and agreement, RCD agreement. The Regional Cooperation Development. Yes, beta. RC agreement was between Pakistan, Iran, and Turkey to have free trade, means के trade without taxes or tariffs. Is it clear? RCD agreement. RCD is Regional Cooperation for Development. आपने अगर full form लिखनी है, you can write Regional Cooperation for Development. Is it clear, everyone? Is it clear, everyone? जी बेटा, regional cooperation for development. Is it clear? Next बेटा, another success of his foreign policy was that was called Indus Water Treaty. Indus Water Treaty, and it was signed in 1960. Which country? To which country this was signed? India. It was failure. Acha. So next is boundary dispute was signed. Boundary dispute with China was resolved. China को हमने काशगर का एरिया दे दिया। Clear? तो चाइना के साथ boundary settlement with China. Boundary settlement with China. आपको पता है 1963 से पहले चाइना भी हमारा इंडिया की तरह एक दुश्मन था, लेकिन 1963 में हमने चाइना को, गिलगित बल्तिस्तान का एक एरिया था, वो हमने चाइना को गिफ्ट किया। आफ्टर दैट चाइना बिकेम बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। क्यों, क्या हो गया मुस्तफा? अच्छा मुस्तफा, ऐसी क्या चीज है आपके पास? अच्छा जाओ। सो जी बेटा, नेक्स्ट बेटा, फेलियर्स ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। फेलियर्स, क्या है? तुमने क्या किया? कैसे चाहिए इसको? अच्छा जी बेटा, नेक्स्ट इज वी हैव फेलियर्स। इन द फेलियर्स बेटा वी हैव, फेलियर्स के अंदर, ये बंद कर दो मुस्तफा। इन द फेलियर्स वी हैव U2 इंसिडेंट, बेटा U2 इंसिडेंट वाज a spy plane incident which flew from Peshawar Air Base, और अमेरिकन एक स्पाई प्लेन जो है उसने रशिया के ऊपर, पाकिस्तान से उड़ा, अमेरिकन स्पाई प्लेन था, वो पाकिस्तान से फ्लाई कर रहा है, और इसके बाद यूएसएसआर ने हमें सही नाक में हमारे दम किया और इंडिया को सपोर्ट किया, इंडिया को वेपन्स दिए अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट वाज द फेलियर कि हमने अपनी एयरबेस अमेरिका को बेच दी डॉलर्स की खातिर। यस, पेशावर एयरबेस। नेक्स्ट फेलियर। यस बेटा। सर सक्सेसेस के अंदर ताशकंद एग्रीमेंट भी आ सकता है? ताशकंद मैंने लिखा है, अभी लिखा है मैंने, ताशकंद इज द बिग फेलियर, क्योंकि ताशकंद एग्रीमेंट वाज इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में या रशिया के साथ रिलेशन के पर्सपेक्टिव में तो इट वाज ए सक्सेस, बट एज फार एज पाकिस्तान इंटेग्रिटी इज कंसर्न्ड इट वाज ए फेलियर।
कि अयूब खान लॉस्ट द वॉर ऑन टेबल। फिर आप मुझे ये बताएं कि अगर ताशकंद एग्रीमेंट वाज ए सक्सेस, तो पाकिस्तान के फौजी जो द सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान हु वर एग्जीक्यूटेड बाय इंडिया, who embraced martyrdom in the 1965 war, तो वो किस लिए की थी आपने? अगर बाद में एग्रीमेंट करके आपने सुलह करनी है तो फिर लड़ाई की क्यों थी? बात तो सर पाकिस्तान तो 1965 की जंग हार गई थी ना। बेटा ऐसी बातें नहीं करते, रिकॉर्ड हो रही। अच्छा आगे चलते हैं। अली मूसा बाद में बात करते हैं इस पे। सही है सर। ओके बेटा, सो नेक्स्ट इज the question unpopularity of Ayub Khan. Ayub Khan was the person who was highly unpopular, after few incidents. आपको पता है अयूब खान 1968 में अयूब खान celebrated, in 1968 he celebrated decade of development. In 1969 अयूब खान जहां से भी गुजरता था तो एक लोग स्लोगन लगाते थे, and that was very slogan, अयूब कुत्ता. That was the slogan which people chanted when अयूब जो है visited any area in Pakistan. Fair? Because he was the person, he enhanced the hatred of people by these things. Ayub and Fatma Jinnah. फिर उसने इलेक्शन लड़ा था फातिमा जिन्ना के खिलाफ। Let me just Ayub Khan beta, he declared Fatma Jinnah as the traitor. Ayub Khan ने क्या किया बेनजीर भुट्टो के साथ, उसे फातिमा जिन्ना के साथ, ये आपको इससे आइडिया हो जाएगा। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या हुआ था। अब ये देखिए, अब्दुल गफ्फार खान और इनके साथी असल में मिस फातिमा जिन्ना के साथ पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। अयूब खान इज गेटिंग वोट फ्रॉम पीपल बाय डिक्लेयरिंग फातिमा जिन्ना एज ट्रेटर, एंड शी वाज एजेंट ऑफ रॉ, इंडियन सीक्रेट एजेंसी जो रॉ है। इन्होंने अयूब खान साहब ने उसमें फातिमा जिन्ना को बोला था कि शी इज एजेंट ऑफ रॉ की एजेंट थी। तो ये पहले तो ये भी कहा, फिर इसके बाद सबसे बड़ा मजेदार बात क्या थी कि इसके फातिमा जिन्ना को डेरोगेटरी किस्म का एटीट्यूड शो किया। डेरोगेटरी क्या था कि मतलब सपोर्टर ऑफ अयूब खान मिसयूज्ड द नेम ऑफ मिस फातिमा जिन्ना। ठीक है, मिस फातिमा जिन्ना का जो नेम है दैट वाज मिसयूज्ड बाय अयूब खान। इज इट क्लियर एवरीवन? जी बेटा। सो इज इट क्लियर बेटा? सर अब मैं वो वर्ड्स बोले जो मैं ऑन एयर नहीं बोल सकता, वो वर्ड्स थे जो अयूब खान बोलता था फातिमा जिन्ना के बारे में। दीज वर वेरी डेरोगेटरी फॉर वुमेन। सर से भुट्टो भी इन्वॉल्व था ना जब वो अयूब के साथ थे इनिशियली। जी बेटा, जी। अच्छा, ये खैर मैं बोल नहीं सकता, डेरोगेटरी वर्ड्स हैं। ओके जी, नेक्स्ट वन इज he became unpopular due to elections against Fatima Jinnah. Elections against Fatima Jinnah. देखिए, लोगों की people had huge affiliation with Fatima Jinnah. जी बेटा, फातिमा जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना की क्या लगती थी? एक मिनट, मैं जिसे पूछूंगा। सर बहन। वेट। जी बेटा, बहन, अम्मा नहीं है भाई, बहन है। ठीक है, फातिमा जिन्ना वाज द सिस्टर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट इज ताशकंद डिक्लेरेशन। क्या ताशकंद डिक्लेरेशन के बाद अयूब खान को कहा गया कि ही लॉस्ट द 1965 वॉर
on table. Yes, Bhutto negatively portrayed Tashkent Declaration in public. Then murder of students on order of Ayub Khan. Murder of students 1969. Students in Peshawar on order of अयूब. बेटा अयूब के ऑर्डर्स के ऊपर मर्डर किया गया इनोसेंट स्टूडेंट्स का. अयूब खान साहब को यूनिवर्सिटीज में जाके लेक्चर देने का भी शौक था ना. पेशावर में इस्लामिया कॉलेज पेशावर की बात है शायद, वहां पे स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया. इसने ऑर्डर दे दिया पुलिस को कि इस पे फायरिंग करो, लोग बच्चों पे फायरिंग की, कुछ बच्चे मर गए, स्टूडेंट्स की डेथ हुई. उसके बाद आफ्टर दैट असैसिनेशन जो है वो हो गई जी. नेक्स्ट बेटा, अनदर रीजन ऑफ डिसमिसल ऑफ अयूब खान. एक और रीजन क्या थी अयूब खान के डिसमिसल की? दैट रीजन वाज फेलियर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज. आपको पता है Pakistan's total wealth was in the hands of 80% industrial wealth of the country was in the hands of just 22 families. Yes, banking system as well. ये बड़ी बड़ी families, आज भी यही families हैं. 22 families of Ayub Khan. Yes बेटा, शरीफ family नहीं थी बेटा. 22 families. What were those 22 families? वो आज भी वही फैमिलीज पाकिस्तान के अंदर है. क्लियर? ये 22 फैमिलीज की अगर शायद लिस्ट आ जाए, नहीं आ रही. अच्छा खैर बेटा, टॉप 22 फैमिलीज वर देयर इन पाकिस्तान. 14 पाकिस्तान से. ओके नहीं पॉलिटिकल फैमिलीज हैं. दैट इज द लिस्ट ऑफ. खैर छोड़ दें बेटा. आज भी पाकिस्तान के अंदर मोर और लेस 12 वही फैमिलीज हैं जिनके पास हमारी इंडस्ट्रियल वेल्थ का तकरीबन 60 to 70% शेयर है. ठीक है? आपने नाम कभी सुना है ये गंधारा का नाम सुना है, दाऊद ग्रुप का नाम सुना है? देयर आर मल्टीपल सेगल फैमिली, देयर आर मल्टीपल फैमिली बिजनेसेस जो हैं, निशात ग्रुप, ऑल दीज ग्रुप्स आर. मियां मंशा सर मुझे. यस बेटा, मियां मंशा जो है, मियां मंशा अभी वाला बैंक जो है. वाले होने. अब ये सारी. यस बेटा. नेक्स्ट बेटा, लास्ट पॉइंट, प्रॉब्लम्स इन ईस्ट पाकिस्तान. प्रॉब्लम्स इन ईस्ट पाकिस्तान आफ्टर अरेस्ट ऑफ Sheikh Mujib. Beta, Sheikh Mujib was one of the most famous leader in East Pakistan, and Bhutto Ayub Khan arrested him when he presented his 6 points. उसने 6 डिमांड्स रखी थी मुजीबुर रहमान ने, और इसने पकड़ के क्या किया? मुजीबुर रहमान को जेल में डाल दिया. इज इट क्लियर? बेटा, दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ Ayub Khan. On that structure, you need to be very clear. I gave you the outline of Ayub Khan in this class. This is just the outline. I will explain all these points in the next class. Means we will explain the domestic policies. I will explain the foreign policy. बाकी दोनों सवाल automatically खुद ब खुद उसके साथ कवर अप हो जाएंगे. Is it clear, everyone? जी online students. Is it clear? Yes, sir. Yes, beta. Okay जी, done everyone? Online students, screenshot ले लिया बेटा किसी ने? Can you please take the screenshot? Yes, can anyone take the screenshot बेटा?
प्लीज शेयर इन द ग्रुप। सर ले लिया? ओके। जी